Hello students, welcome back to my channel Sri Hari Academy. I am your biology mentor Shaitali ma'am and I am here to make your concept crystal clear. Students, have you ever get this type of compliments in your life? Like, you look exact copy of your mother. Your eyes is very similar to your father. Have you ever get this type of compliments? Have you ever think why? What is the reason behind it? We all know the reason behind it is heredity. Okay, the reason behind this is heredity. So student, in this lecture we will study about heredity. It's chapter number 9 of class 10. So without wasting the time, let's get started. Students, before study the chapter, you must have familiar with some terminology. Okay, you must have familiar with some terminology like genetics, genes, chromosomes, chromatids, diploid and haploid type of cell and everything. I will take 5 class on this topic and this is the first class. This is very introductory. Okay, this is the introduction class, and in second class I will teach you monohybrid cross. In third class I will teach you dihybrid cross, and in fourth class I will teach you the leftover or the remaining topics. Okay, and the fifth class is question and answer type of question and answer type of class. Okay, so we will complete this chapter in just 5 lecture. Please, okay, please continue watch my lecture, and do like and subscribe. Okay student, let's get started. Genetics. What is genetics? Do you know? It is a branch of science in which we study about genes, genetic variation and heredity. Heredity comes under genetics. हम ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है और हम कह सकते हैं इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. अगर और डीप में जाए तो इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about genes, genetic variation. The variation that occurs in gene is called genetic variation, and heredity. Okay, are you getting my points? Now, who is the father of genetics? We all know Gregor J. Mendel, है ना? प्रणाम कर लो, ये पापा हैं जेनेटिक्स के. Gregor J. Mendel, and the term coined by what? This term genetics. The term genetics is coined by William Batson, है ना? बच्चे, हमारे पापा कोई और होते हैं और हमारा नाम हमारी मौसी, हमारे फूफा, हमारी ताऊ ने दिया हुआ होता है. लाइक मेरे पापा हैं श्री प्रमोद कुमार और मेरा नाम चैताली मेरी मौसी ने रखा. तो उसी तरीके से फादर कौन है? ग्रिगोर जे मेंडल, एंड द टर्म जेनेटिक्स इज कॉइन्ड बाय विलियम बैटसन. नाउ व्हाट इज हेरिडिटी? इट्स द नेम ऑफ चैप्टर. हेरिडिटी इज व्हाट? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. बच्चों, in the world of science we call characters as trait. Okay, traits is what? Traits is characters from parents to offspring. Offspring हम बेबीज को कहते हैं, लाइक ह्यूमंस के बेबी चाइल्ड, है ना? कैट के बच्चों को हम किटन कहते हैं, डॉग्स के बच्चों को हम पपी कहते हैं. लाइक ऑफस्प्रिंग हो जाते हैं बच्चे, चिल्ड्रन. ओके, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, जो हमने अभी बोला कि तुम एग्जैक्ट अपने मम्मी की तरह दिखते हो, अपने पापा की तरह दिखते हो, तो जो कैरेक्टरिस्टिक जो ट्रांसमिट होता है ना, ट्रांसमिशन हमसे हमारे बच्चों में का जो कैरेक्टरिस्टिक, वो ट्रांसमिशन को हम कहते हैं हेरिडिटी. ओके, नाउ वेरिएशन. व्हाट इज वेरिएशन? द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज. लाइक we human belong to Homo sapiens. We human belong to Homo sapiens. We are very similar to each other, but we are not identical.
Are you getting my point? We are similar to each other, but we are not identical. The reason behind, obviously, variation, genetic variation. Okay. The importance of variation. In the previous chapter, we have studied about the importance of variation. It is very important topic. आप मेरे लेक्चर पे जाओ, और इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्चर भी मैंने, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन भी मैंने पढ़ाया है. इनफैक्ट बहुत ही अच्छा नोट्स प्रोवाइड किया है. प्लीज़ आप मेरी प्रीवियस वीडियो पर जाओ और देखो इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन का, कि वेरिएशन का इम्पोर्टेंस क्या है. लाइक वेरिएशन, ड्यू टू वेरिएशन वी आर गेटिंग इवॉल्व, इवोल्यूशन में हेल्प करता है. लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिएशन न्यू स्पीसीज इन्वॉल्व. ओके, due to variation the new species are formed. Now, what is inherited traits or what is acquired traits? Traits मतलब characters, है ना. Inherited traits is what? This trait are inherited or transmitted from generation to generation. Okay. This trait are inherited from parents during reproduction. ऐसे traits, ऐसे characteristics जो generation से generation transmitted और pass होते रहते हैं, वैसे traits को हम कहते हैं inherited traits. Okay. Like हमारे किसी के straight hair होता है, किसी के curly hair होता है, तो जो ये हेयर का जो स्ट्रेंथ है, और या फिर लाइक किसी के आईज ब्लू होते हैं, किसी के आईज ब्लैक होते हैं, तो जो आई का कलर है, ये सारे ना बच्चों इनहेरिटेड ट्रेट्स है. मतलब कैरेक्टरिस्टिक है जो, लाइक आप गौर करोगे कि अगर हमारे पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के में से किसी के अगर ब्लू आईज है, तो उनके बच्चों में या फिर बच्चों के बच्चों में ब्लू आईज मिल जाते हैं. तो ऐसे कैरेक्टर्स और ऐसे ट्रेट्स को हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स. ओके. और अगला है एक्वायर्ड ट्रेट्स. ट्रेट्स भी दो प्रकार के होते हैं, जो कि इनहेरिटेड होते हैं, जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं, और जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होते हैं, जो कि एक आदमी अपने मेहनत या फिर अपने स्किल, अपने पावर से ऐसे कैरेक्टर को अपने अंदर लेकर आता है. लाइक कोई है, वो बहुत अच्छा टीचर है ना. कोई बहुत अच्छा टीचर है, वो अच्छा टीचर कैसे बना, उसका टीचिंग स्किल कैसे डेवलप्ड हुआ, उसने बहुत प्रैक्टिस करा, उसने खुद पर वर्क करा. ठीक है, तो ये कैरेक्टर उसमें डेवलप्ड हुआ. तो क्या एक अच्छा टीचर, उसके बच्चे भी अच्छे टीचर होंगे? नहीं, ज़रूरी नहीं है. ठीक है. तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो कि ट्रांसमिट और इनहेरिटेड जनरेशन टू जनरेशन नहीं होते. ठीक है, वो जो है ऐसे ट्रेट जो एक्वायर्ड होते हैं बर्थ के बाद, जो बर्थ के बाद अपने अंदर वो ट्रेट आ जाते हैं, वैसे ट्रेट्स को हम कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स. ओके. ये दोनों टर्म्स क्लियर है? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? नाउ द नेक्स्ट टर्म इज DNA. सबको पता है DNA क्या है ना. तुम्हारे DNA में है ये, है ना. बोलते हैं ना एक दूसरे को, तो मेरे जीन में है ये. तो बच्चों, DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNA? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. एंड व्हाट इज DNA? DNA is a thread-like structure which carries all the information about our characters, है ना, about our characters. तो DNA होता कहाँ है? DNA होता कहाँ है? We all know that we humans or any living organism are made up of cells. Cell is our structural and functional unit, है ना. Cell is the structural and functional unit of our life. तो जो हमारा सेल होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है ना, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, एंड inside the cytoplasm there is nucleus, and DNA is present inside the nucleus, okay, in the form of chromatin. जो DNA है बच्चों, वो न्यूक्लियस के अंदर में रहता है, लेकिन DNA अरेंज्ड नहीं रहता, वो
स्कैटर्ड रहता है, मतलब बिखरा हुआ टाइप्स कह सकते हैं. थ्रेड लाइक अ स्ट्रक्चर यूं इस तरीके से रहता है न्यूक्लियस के अंदर. क्या? डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन्स है ना. अब क्रोमोसोम क्या हुआ? जब ये सेल का सेल डिवीजन होता है, जब ये पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं, जब सेल डिवीजन होने वाला होता है ना बच्चों, तो क्या होता है कि जो ये क्रोमैटिन है, स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, क्रोमैटिन जो है वो धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होने लगता है और क्या हो जाता है? क्रोमोसोम बन जाता है ना. कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम बन जाता है. ड्यूरिंग क्रोमैटिन ही है वो जब थोड़ा उलझ जाता है तो वो क्रोमोसोम बन जाता है. और क्रोमैटिन क्रोमोसोम कब बनता है? ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन. समझ में आया? और क्रोमोसोम में ही होता है डीएनए. ठीक है, क्रोमोसोम में ही होता है डीएनए और डीएनए में ही होता है जीन. क्रोमोसोम में ही होता है डीएनए और डीएनए में ही होता है जीन. ठीक है, जीन्स के बारे में हम पढ़ते हैं. व्हाट इज जीन, है ना. बात करते हैं जीन्स की बच्चों. तो जीन्स क्या है? इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर अ पार्टिकुलर कैरेक्टर्स. लाइक हमारा ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है. इसमें क्या होता है ना, एज वी ऑल नो दैट क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, है ना. डीएनए इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड. तो इन दिस डीएनए एक पोर्शन होता है बच्चों जिसमें प्रोटीन की जो कोडिंग होती है, एक प्रोटीन की कोडिंग होती है और वो कोडिंग एक पार्टिकुलर कैरेक्टर्स को डिनोट करती है. लाइक यहाँ पर ये डीएनए है, इसमें एक पार्टिकुलर कोड, इस डीएनए के सेगमेंट में एक पार्टिकुलर कोडिंग है जो कि डिनोट करती है आई कलर को, है ना. जो डिनोट करती है आई कलर को. तो हम आई कलर को डिनोट करती है तो इस पार्टिकुलर सेगमेंट को हम कहेंगे जेन. समझ में आ रहा है? या फिर एक अलग सेगमेंट है, ये सेगमेंट डिनोट करता है हमारे हेयर कलर को. ठीक है, तो हेयर कलर को डिनोट करता है तो इस सेगमेंट को हम कहेंगे जेन. समझ में आ रहा है? व्हाट इज क्रोमोसोम, व्हाट इज डीएनए एंड व्हाट इज जेन. क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट टर्म इज बच्चों, डू यू नो cell is of two type, diploid cell and haploid cell. What is diploid cell and what is haploid cell? When in a cell two copy of each chromosome is present, okay, two copy of each chromosome is present, then this type of cell is known as diploid cell. And what is haploid cell? Single copy of each chromosomes is present. If single copy of each chromosome is present, then this type of cell is known as haploid cell. बच्चों, हम सब अभी हमने पढ़ा कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और उसी डीएनए के अंदर जीन होता है ना. तो जो क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस के अंदर, अगर जो क्रोमोसोम होता है, अगर क्रोमोसोम अगर डबल है, 2 कॉपी है, हर एक क्रोमोसोम का 2 कॉपी है. लाइक क्रोमोसोम ए 2 कॉपी है, मतलब दोनों जुड़वा भाई है, ऐसे समझ लो. अगर जुड़वा भाई प्रेजेंट है, दो कंडीशन है, डबल कंडीशन है, तो ऐसे याद रखो, D फॉर डबल एंड D फॉर डाइप्लॉइड, है ना. तो ऐसे सेल्स को हम कहेंगे डाइप्लॉइड सेल. और अगर ऐसे सेल्स जिसमें सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम है, मतलब कोई भाई बहन नहीं है, वो खुद अकेला है, हर एक क्रोमोसोम अकेला है, तो ऐसे सेल को हम कहेंगे हैप्लॉइड सेल. आपको पता है बच्चों, हमारे पूरे बॉडी में जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स क्या है बच्चों? हमारे बॉडी के सारे सेल्स एक्सेप्ट वैसे सेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, except those cells which are involved in sexual reproduction, all the cell present in a human body is known as somatic cell.
जो सारे सोमैटिक सेल्स है बच्चों वो है डाइप्लॉइड सेल। डाइप्लॉइड सेल्स क्या है? सारे सोमैटिक सेल डाइप्लॉइड सेल है। और बाकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व सेल्स है वो हैप्लॉइड सेल है ना। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है वैसे सेल हैप्लॉइड सेल है। समझ में आ रहा है? ये चीजें क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक हम बात करते हैं हम ह्यूमन बींग्स के, तो जो हमारे सेल्स होते हैं ना, हमारी ईच एंड एवरी सेल, हमारे हर एक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं पता है बच्चों? 46। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 46। हमारे सोमैटिक सेल में व्हाट इज सोमैटिक सेल्स? ऑल द सेल इन अ ह्यूमन बॉडी एक्सेप्ट those cells which are involved in sexual reproduction. ओके, दिस इज कॉल्ड सोमैटिक सेल। हमारे हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। बट यही अगर जो सेल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक इन मेल, कौन से सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है? स्पर्म सेल। एंड इन फीमेल कौन से सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है? ऑब्वियसली ओवम, है ना। तो सोमैटिक सेल 46 है। तो हम वी ऑल नो दैट कि हमारी जो ओवल और स्पर्म में जो सेल्स का नंबर होता है, जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो 23 होता है। पता है? स्पर्म में क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो 23 होता है, और यही अवम में भी 23 होता है। यहाँ पर हम सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक पढ़ते हैं। ये टॉपिक हो जा रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन का। चूंकि डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल आ चुका था, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये टर्मिनोलॉजी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन भी समझा देती हूँ। सोमैटिक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये डाइप्लॉइड सेल है। चूंकि हैप्लॉइड सेल हमारा अवम और स्पर्म होता है, तो 23 क्रोमोसोम्स होता है। अवम में भी 23 क्रोमोसोम्स होता है। बात करते हैं जिसमें से 22 क्रोमोसोम्स होते हैं, और एक क्रोमोसोम होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। एक क्रोमोसोम होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। सिमिलरली अवम और ये स्पर्म, ये बात हो रहा है ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। ये बात हो रहा है ह्यूमन बींग्स का। इसमें अगर क्रोमोसोम नंबर देखे बच्चों तो ये 22 एंड 1 विच इज इन्वॉल्व इन सेक्स, विच इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। सिमिलरली इसे भी हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। इसे भी हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, 22 है, और ये हो जाता है या तो जो स्पर्म के जो क्रोमोसोम्स टाइप्स होते हैं, क्रोमोसोम नंबर टाइप्स होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। या तो ये 22 प्लस X होगा, या तो 22 प्लस Y होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप YouTube पे भी वीडियो सर्च कर लो, लेकिन यहाँ पे जो एक माइनर कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, ये समझ नहीं आता। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या होता है 46 23। तो ध्यान रहे, सारे सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि सारे सेल डाइप्लॉइड होते हैं। बट जो सेल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाता है, 23 23 22 22। और अगर हम इसको थोड़ा इलेबोरेट करें तो 22 क्रोमोसोम प्लस 1, जो 1 क्रोमोसोम्स होता है बच्चों वो सेक्स क्रोमोसोम होता है यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर मेल के केस में क्या होता है ना बच्चों, ये 2 टाइप्स के, स्पर्म में जो क्रोमोसोम होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, 22 प्लस एक्स फैक्टर और 22 प्लस वाई फैक्टर, 2 टाइप्स के होते हैं। डिपेंड करता है नंबर, ये 2 टाइप्स के होते हैं, हाफ एंड हाफ। और जो अवम में है बच्चों, जो लड़कियों के पास मात्र एक्स फैक्टर होता है, ठीक है। जब दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों मेल और फीमेल में जब मैटिंग होती है, दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं, तो 22 प्लस अगर इस टाइप का जो स्पर्म है, अगर ये वाला जो स्पर्म है वो अगर इस फीमेल के अवम से मेट कर गया, तो ये एक्स और एक्स बन जाएगा,
ठीक है, एक्स और एक्स बनेगा। और अगर ये वाला स्पर्म अगर फीमेल से मेट किया, फ्यूज हुए दोनों आपस में, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो एक्स और वाई बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों का मेटिंग होगा बच्चों तो बनेगी बेबी गर्ल, ये बन जाएगी बेबी गर्ल। और अगर ये दोनों का मेटिंग हुआ बच्चों तो ये बन जाएगा बेबी बॉय। हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हमारे हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे गांव कस्बे हैं जहां पर आज भी नारियों को ब्लेम किया जाता है, जहां पे आज भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं नारियां कि तुमने बच्चों को, तुमने बेटी जन्माई, तुमने बेटी को जन्म दिया है, कसूर तुम्हारा है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तुम्हारी वजह से बेटियां जन्मी है। लेकिन नहीं बच्चों, बेटा और बेटी डिपेंड करता है मर्द पर, बेटा और बेटी डिपेंड करता है फादर पर। समझ में आ रहा है क्यों? एक्स 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 वाई, ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों। एक और टर्म आता है एलील्स। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीन एंड एलील, है ना? तो आइए समझते हैं एलील क्या है, व्हाट इज एलील। बच्चों, alleles are the alternate form of genes that occupy a specific location on a particular chromosome and control the same character। मतलब बच्चों, फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल मेट होता है ना। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गेट फ्यूज्ड, मेल एंड फीमेल गैमेट्स गेट फ्यूज्ड, है ना। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, तो मान लो स्पर्म का जो क्रोमोसोम है जो कि हैप्लॉइड होता है, एक ही जिन सिंगल कॉपी ऑफ अ पार्टिकुलर जीन इज प्रेजेंट, है ना। तो मेल का जो ये मान लो जी ये जाइगोट है ना, मान लो ये जाइगोट है। व्हाट इज जाइगोट? जाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जाइगोट है, ये जो क्रोमोसोम है वो मेल से आया और ये जो क्रोमोसोम है वो फीमेल से आया। ठीक है, इस क्रोमोसोम में पार्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन है जो कि पार्टिकुलर प्रोटीन के कोडिंग से बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं जिन। ठीक है, यहाँ पर जो जिन है और सिमिलरली यहाँ पर जो जिन है, ये जिन है रिस्पॉन्सिबल है आई कलर के लिए, मान लो। ठीक है, मान लो रिस्पॉन्सिबल है आई कलर के लिए। जो ये बेबी जाइगोट का जो फादर है, जो पप्पा है इसका, उसका आई कलर है ब्लू। आई कलर क्या है? ब्लू। और ये जो मम्मा है, मम्मा, उसका आई कलर है ब्लैक। क्या है बच्चों? ब्लैक। ठीक है, ये कोड करता है ब्लू कलर कि ये इस जिन के जो प्रोटीन में जो कोडिंग है वो आई कलर है ब्लू कलर के लिए, और इस क्रोमोसोम के इस जिन पे जो प्रोटीन का कोडिंग है वो रिस्पॉन्सिबल है ब्लैक कलर के लिए। लेकिन ब्लू और ये ब्लैक, ठीक है, ये दो अलग अलग जिन है। ठीक है, ब्लू और ब्लैक। ठीक है, ये जो दोनों जब ये दोनों को जब हम देखेंगे बच्चों, तो ये आपस में अलील है। ये आपस में क्या है? अलील्स है। ठीक है, ये पेयर क्या है? अलील है। समझ में आया? अलील्स आर द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स दैट ऑक्युपाई अ स्पेसिफिक लोकेशन on a particular chromosome and control the same character of, ठीक है, in this example we will take the character of eye color, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हो जो ब्लू कलर का पल्ला है ना, जो मेल का पल्ला है, कहीं कहीं फीमेल का पल्ला ज़्यादा होता है, किसी फैमिली में फीमेल का पल्ला ज़्यादा होता है। तो मान लो इन दिस केस ये जो मेल का ब्लू कलर का जो पल्ला है वो भारी है और फीमेल का ब्लू कलर का जो ब्लैक कलर आईज का पल्ला है वो हल्का है। समझ में आया? ये डोमिनेंट है ओवर द फीमेल आई कलर, तो इस बेबी जाइगोट का कलर हो जाएगा ब्लू। इस बेबी जाइगोट का आई कलर ब्लू हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये अलील है, ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है। ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है। ठीक है, ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है। जैसा कि हमने देखा अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था, जीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आई कलर, है ना, डी एंड बी,
कैपिटल B फॉर ब्लू एंड स्मॉल b फॉर ब्लैक। तो यहाँ पर पल्ला भारी था कैपिटल B क्योंकि ये डोमिनेंट था, जिसकी वजह से आई कलर हुआ ब्लू। सिमिलरली बच्चों, जो भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो या तो डोमिनेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या रिसेसिव के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो कैरेक्टर अगर डोमिनेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो वो होगा वही कैरेक्टरिस्टिक, और जो एलील है वो जो जीन पे डिपेंड होता है वो 3 टाइप से होता है, वो 3 टाइप से हो सकते हैं। जो अलील जो होता है ना बच्चों, वो 3 टाइप से प्रेजेंट हो सकता है, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट, या तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, या तो हेट्रोजाइगस कंडीशन, या तो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन मतलब होमोजाइगस, नाम से ही क्लियर है, होमो, और डोमिनेंट मतलब दोनों का दोनों डोमिनेंट, ठीक है। हेट्रोजाइगस मतलब हेट्रो मतलब मिक्सचर, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन मतलब दोनों के दोनों रेसेसिव, छोटे छोटे। तो अगर कैपिटल B फॉर ब्लू है और स्मॉल b फॉर ब्लैक है बच्चों, अगर कैपिटल B फॉर ब्लू है और स्मॉल b फॉर ब्लैक है बच्चों, तो ये थे पापा और ये थी मम्मा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा होता नहीं है, ये थे पापा और ये थी मम्मा, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर चूंकि पापा का पल्ला यहाँ पे भारी है, ये कैपिटल है, ये ब्लू है, ब्लू का डोमिनेंट है, ये कैरेक्टरिस्टिक ब्लू का आई कलर का डोमिनेंट है, और ये ब्लैक कलर का जो मम्मा का जीन है वो रेसेसिव है। तो यहाँ पर पल्ला दोनों, अगर फादर का हम डाई हाइब्रिड क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये जो क्रॉस होता है कैसे आपस में दोनों क्रॉस होते हैं, ये हम अपने सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे। बट चूंकि यहाँ पर टर्म है अलील्स, तो इसे क्लियर करने के लिए ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम अभी ले लेते हैं, चूंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्लू कलर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो हैवी है, मम्मा पापा दोनों आपस में बोल रहे हैं, लेकिन पल्ला पापा का यहाँ भारी है, तो ऑब्वियसली ये भी होगा ब्लू कलर। यहाँ पर तो भाई पापा है ही नहीं, सिर्फ मम्मा है। अब घर है बच्चों, दोनों यहाँ पर सिर्फ मम्मी ही है, तो जाहिर सी बात है पापा है ही नहीं, तो जो भी डिसीजन मेकिंग होगा बच्चों को मम्मा का ही सुनना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा ब्लैक कलर, ठीक है। अलील की वजह से जो कंडीशन होती है, 3 टाइप की कंडीशन हो सकती है, या तो होमोजाइगस होमोजाइगस डोमिनेंट, दोनों ही डोमिनेंट और होमो और डोमिनेंट, ठीक है। और या तो होमोजाइगस रेसेसिव, दोनों ही छोटे छोटे, दोनों का पल्ला कम मजबूत, और हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब मिक्सचर। अगर मम्मा पापा दोनों हैं, पापा का पल्ला भारी है उस फैमिली में, तो ऑब्वियसली पापा का चलेगा ब्लू। समझ में आया? अब इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो हम वी ऑल नो दैट द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रिगोर जे मेंडल, है ना बच्चों। एनसीईआरटी बुक खोलिएगा आप सब, है ना, एनसीईआरटी बुक खोलिएगा आप सब, पेज नंबर 144 निकालिएगा। ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये बॉक्स है ना, ये पढ़िएगा ज़रूर। क्यों मैम? एग्ज़ाम में आएगा, इम्पॉर्टेंट है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इससे? नहीं बच्चों, हमारे स्कूल के एग्ज़ाम में तो काम नहीं आएगा, लेकिन हाँ हमारी लाइफ में काम आ सकता है। इनकी स्टोरी, ग्रिगोर जे मेंडल की स्टोरी। मेंडल वॉज एजुकेटेड इन अ मॉन्स्ट्री एंड वेंट ऑन टू द स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स एट अ यूनिवर्सिटी ऑफ वेना। बच्चों ये आप पढ़िएगा खुद से, मैं बताती हूँ इनकी स्टोरी आपको। जो ग्रिगोर जॉन मेंडल थे बच्चों, वो मॉन्स्ट्री में पढ़ते थे, होता है ना लाइक हमारे में गुरुकुल टाइप्स के इंस्टीट्यूशन, वहाँ पर ये पढ़ते थे मॉन्स्ट्री में। इन्होंने मैथ्स और साइंस दोनों पढ़ा। इनका सपना था टीचर बनने का, लेकिन बच्चों जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना, लाइक सीटेट है ना, कोई भी स्टेट टेट, ये एग्ज़ाम भी इन्होंने क्लियर नहीं कर पाया। चूँकि ये एग्ज़ाम क्लियर इन्होंने नहीं कर पाया, इनका टीचर बनने का सपना टूट गया। तो जो मेंडल साहब थे वो अपने मॉन्स्ट्री में आकर वापस दुखड़े के साथ साथ आकर रहने लगे। और इन्होंने बच्चों अपने गार्डन में पी मटर जो होता है ना, ठंड के मौसम में चाचियाँ छत पर जाकर आपस में गप करते करते मटर छिलती है, वही मटर,
उसी मटर का प्लांट उन्होंने लगाना स्टार्ट किया, ठीक है। उन्होंने वही प्लांट को लगाकर उन्होंने देखा कि कुछ मटर के प्लांट पौधे पे वाइट कलर का फ्लावर आ रहा है और कुछ मटर के पौधे पर ब्लू कलर का फ्लावर आ रहा है। तो कहते हैं ना, बैठे बैठे क्या करो, करना है कुछ काम। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों ब्लू कलर के पौधे और वाइट कलर के पौधे पे अगर क्रॉस कराएं, ये दोनों का, तो उन्होंने क्या किया, ये दोनों पौधे को आपस में क्रॉस कराया, फर्टिलाइजेशन कराया और बहुत कुछ रिजल्ट्स आया, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। और बहुत ही भयानक भयानक रिजल्ट्स आए जिनसे कहते हैं ना, हेरिडिटी जो साइंस का जो ब्रांच है हेरिडिटी, वो इवॉल्व हुआ। समझ में आ रहा है? वो खुद टीचर तो नहीं बन पाए, लेकिन हाँ साइंटिस्ट ज़रूर बन गए। हमारे बायोलॉजी की दुनिया में हेरिडिटी का इंट्रोडक्शन कराया इन्होंने। समझ में आया? तो बच्चों, कभी भी हम अपनी लाइफ में फेल हो या फिर कोई हमें फेलियर कहे तो कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि हमें अंदर से ये जान लेना चाहिए कि भगवान ने हमारे लिए इससे भी कुछ ना कुछ बहुत बड़ा रखा है, इसीलिए हम इस चीज़ में फेल हुए हैं। तो कभी भी अपने आप ने कभी भी डीमोटिवेशन नहीं लाना बच्चों, कभी भी डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ा है, काम बहुत आएंगे, नाम बहुत होगा। थैंक यू। आज के इस लेक्चर में इतना ही, और बाकी मेरे साथ जुड़े रहें और हम पढ़ेंगे पूरी हेरिडिटी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। थैंक यू।